مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو اور مسیح یشوع کے فضل اور سچائی کے روح سے، مکاشفہ کے روح سے اور روح القدس کی مدد سے آج ہم اس وشے پر روشنی ڈالنے جا رہے ہیں کہ کلام مقدس کے مطابق، کلام حق کے مطابق پڑوسی کون ہے؟ اے استاد، توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اس نے کہا ان سے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ سوال کیا عالم شرع نے۔ عالم شرع یعنی جو پورے عالم کا گیان رکھتا ہو، ہر طرح کا، ہر زبان میں گیان رکھتا ہو، اور جواب دیا یشوع مسیح نے۔ تو سوال کیا کیا کہ اے استاد، اے استاد بول رہا ہے عالم شرع، جس کو عالم کا پورا گیان ہے، عالم کے قانون کا، اور استاد کہا یشوع کو، اور توریت ہے موسیٰ کی پہلی 5 کتابیں، اتپتی سے لے کر آستشنا کی کتاب تک، ویوستھا وورن تک، بوستھا تک، یہ موسیٰ کی پہلی 5 کتابیں ہیں، جس کو عبرانی میں، ہبرو میں توریت کہا جاتا ہے، تورا۔ تو عالم شرع نے، جو ہر زبان میں اور اس وقت کا ہر طرح کا گیان رکھتا ہے، اس نے پوچھا کہ اے استاد، توریت میں یعنی موسیٰ کی پہلی 5 کتابوں میں سے کون سا حکم بڑا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج ہم مسیح یشوع کے فضل اور سچائی کے روح سے، روح القدس کی مدد سے پڑوسی شبد پر مکاشفہ کی روح سے روشنی ڈالنے جا رہے ہیں، کیونکہ جو تو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، مگر جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اور جسمانی نیت موت ہے، مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ لیکن تم جو مسیح یشوع پر ایمان رکھتے ہیں اور جو مسیح یشوع میں نئی سرشت ہیں، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، باشرطے کہ خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے، مگر جس میں مسیح کی روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ کلام حق کے مطابق ہمارا پڑوسی کون ہے؟ کلام حق کے مطابق ہمیں کسے اپنا پڑوسی سمجھنا چاہیے یا کسے اپنا پڑوسی سمجھیں؟ اور دیکھو، ایک عالم شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا کہ اے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ اس نے اس سے کہا کہ توریت میں، موسیٰ کی پہلی 5 کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ تو کس طرح پڑھتا ہے؟ یشوع مسیح نے اس عالم شرع سے کہا۔ اس نے جواب میں کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ اس نے اس سے کہا تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو جیے گا۔ مگر اس نے اپنے تائیں راست باز ٹھہرانے کی غرض سے، اپنے آپ کو دھرمی ٹھہرانے کی غرض سے یسوع سے پوچھا پھر میرا پڑوسی کون ہے؟ تو یہی سوال ہر ایک کے من میں ہوگا کہ ہمارا پڑوسی کون ہے؟ تو یسوع کا جواب سنیے، اب آپ کا پڑوسی کون ہے؟ یسوع نے جواب میں کہا کہ ایک آدمی یروشلم ہے صلح کا شہر، جہاں پر مسیح یشوع کو صلیب دیا گیا، یروشلم ہے، اور صلیب کے دوارا ہماری باپ کے ساتھ صلح ہوئی۔ تو
तब यरूशलेम सुलह का शहर ठहरा, जहां पर हमारी बाप के साथ मसीह यीशुआ के बदन के वसीले, सलीबी मौत के वसीले हमारी सुलह हुई। तो यरूशलेम, शलेम यानी सुलह का शहर, समझौते का शहर, से यरीहो की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में घिर गया। यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में घिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अधमोया छोड़कर चले गए। इत्तेफाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था और उसे देख के कतराकर चला गया। इसी तरह एक लेवी उस जगह आया, वो भी उसे देख के कतराकर चला गया। लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला और देखकर तरस खाया और उसके पास आया और उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन 2 दिनार निकालकर बटियारे को दिए और कहा, इसकी खबरगिरी करना और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूंगा। इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में घिर गया था, तेरी दानिश में कौन पड़ोसी ठहरा? उसने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया। तो जो दुख के दिन में, मुसीबत में दिन में, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी मजहब का हो, कैसा भी हो, धर्मी हो, अधर्मी हो, जैसा भी हो, तो जो दुख के दिनों में आप पर रहम करे, तो वो जिसने उस पर रहम किया, यीशु ने उसे कहा, जा तू भी ऐसा कर, ऐसा ही कर। तो जो दुख के दिनों में, मुसीबत के दिनों में आपकी मदद करे, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, हर तरह से आपको दोबारा से तंदुरुस्त करने के लिए, तो वो आपका पड़ोसी है। तो बेशक कोई बड़े से बड़ा धर्मी है, जब मुसीबत के दिनों में आपको छोड़कर भाग जाए, वो आपका पड़ोसी नहीं है। इसलिए कलाम में लिखा है कि मजदूर जो ना मालिक है ना चरवाहा, वो भेड़िए को आके देखकर भाग जाता है और भेड़िया भेड़ों को परगंदा कर देता है, यानी तीतर बितर कर देता है। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। और जो मुसीबत में भाग जाए वो आपका पड़ोसी नहीं है, वो आपका अच्छा चरवाहा नहीं है। तो जो मुसीबत में काम आए वो ही आपका पड़ोसी है। डाकुओं में घिर गया कि मानिंद मसीह के कहने का मतलब, ये डाकू कौन है? कलामे हक के मुताबिक बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए, यीशु मसीह से जितने पहले आए, सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मालूम हो। जैसा हम पेशतर कह चुके हैं वैसा ही अब फिर कहता हूं कि उस खुशखबरी के सिवा जो तुमने कबूल की थी, अगर कोई तुम्हें और खुशखबरी सुनाता है तो मालूम हो, और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकें, बशर्ते कि खुदा की रूह तुम में बसी हुई है। मगर जिसमें मसीह की रूह नहीं वो उसका नहीं।
تو बेसिकली मसीह ने चोर और डाकू किसे कहा? वो लोग जो मसीह यस्सु के नाम के बगैर, फजल और सच्चाई की खुशखबरी के बगैर किसी और तरह की खुशखबरी सुनाते हैं, या किसी और नामों से, यानी मसीह यस्सु के नाम और कलाम के सिवा, कुदरत के सिवा, तालीम के सिवा किसी के नाम से कलाम और तालीम सिखाते हैं, किसी और नाम से, तो वो दरवाजे यानी यस्सु नाम से कलाम में नहीं आते, बल्कि चोर और डाकू हैं जो किसी और नाम में, कलीसिया में कलाम के हक से घुस आते हैं। क्योंकि साफ साफ लिखा है कि रूहुल कुद्स, जो बाप मेरे नाम में तुम्हें देगा, भेजेगा, वो मेरी बातों में से सिखाएगा और मेरी बातें तुम्हें याद दिलाएगी। रूहुल कुद्स, इसीलिए लिखा जो कोई और तरह की तालीम दे वो चोर और डाकू है, वो खुशखबरी को बिगाड़ना चाहिए। क्योंकि रूहुल कुद्स यीशु मसीह की बातों में से सिखाती है और यीशु मसीह की बातें याद दिलाती है। कलाम के हक से घुस आते हैं चुराने और मार डालने और हलाक करने को। भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़ के भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता और परगंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद कर लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मुतवज्जी होंगे। लेकिन यह जान रख कि आखिर जमाने में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, जरदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, मां बाप के नाफरमान, ना शुक्र, ना पाक, ताबा मोहब्बत से खाली, संगदिल, तोहमत लगाने वाले, बेजब्त, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी किनारा करना। इन्हीं में से वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन छिछोरी औरतों को काबू में कर लेते हैं जो गुनाहों में दबी हुई हैं और तरह तरह की ख्वाहिशों के बस में हैं और हमेशा तालीम पाती रहती हैं मगर हक की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। अब यस्सु का ही कलाम क्यों सुनाना चाहिए? पूरी बाइबल जो है वो यस्सु का ही तो कलाम है। बाइबल में एक नया अहदनामा है और पुराना अहदनामा है और ये दोनों अलग अलग हैं, इकट्ठे नहीं हैं। और पुराना अहदनामा इब्रानी में, हिब्रू में और नया अहदनामा ग्रीक में है यानी यूनानी में है। और कोई शख्स नई में पुराने मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नई में मशकों को फाड़कर खुद भी बह जाएगी और मशकें भी बर्बाद हो जाएंगी। यानी जो मसीह के कलाम को सुनता है उसका मशक के साथ तर्जुमा किया गया है तमसील के तौर पर, तो मशकें भी बर्बाद हो जाएंगी। मसीह यीशु का कलाम ही क्यों? क्योंकि मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वो ही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, जो कुछ यीशु ने कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी सच्चाई की रूह, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहती है और तुम्हारे अंदर होगी। जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह हैं और जिंदगी भी हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई दरवाजे से भेड़ खाने में दाखिल नहीं होता बल्कि और किसी तरफ से
چڑھ جاتا ہے وہ چور اور ڈاکو ہے، لیکن جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے۔ اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں۔ اور دربان ہے مددگار یعنی روح القدس، جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا، یعنی دربان۔ اور ان سے کہا، لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر ہوگا، مگر تم نے اس کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا۔ ڈاکوؤں کی کھو۔ اور وہ ہر روز ہیکل میں تعلیم دیتا تھا، مگر سردار کاہن اور فقی اور قوم کے رائس اس کے ہلاک کرنے کی کوشش کرنے میں تھے۔ ایک آدمی یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں گھر گیا۔ اور چور اور ڈاکو کن کو کہا؟ اور ان سے کہا، لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر ہوگا، مگر تم نے اس کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا۔ اور وہ ہر روز ہیکل میں تعلیم دیتا تھا، مگر سردار کاہن اور فقی اور قوم کے رائس اس کے ہلاک کرنے کی کوشش کرنے میں تھے، کیونکہ ایک آدمی یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں گھر گیا۔ انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی، اور ادمویا چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً ایک کاہن اسی راہ سے جا رہا تھا اور اسے دیکھ کے کترا کر چلا گیا۔ اب کاہن وہ لوگ ہوتے ہیں، غرض پہلے عہد میں بھی عبادت کے احکام تھے، اور ایسا مقدس جو دنیاوی تھا، یعنی ایک خیمہ بنایا گیا تھا۔ اگلے میں چراغدان اور میز اور نظر کی روٹیاں تھیں، اور اسے پاک مکان کہتے ہیں، اور دوسرے پردے کے پیچھے وہ خیمہ تھا جسے پاک ترین کہتے ہیں۔ اس میں سونے کا اسوج، چاروں طرف سونے سے مڑا ہوا عہد کا صندوق تھا۔ اس میں من سے بھرا ہوا ایک سونے کا مرتبان اور پھولا پھالا ہوا ہارون کا عصا اور عہد کی تختیاں تھیں، اور اس کے اوپر جلال کے کروبی تھے جو کفارہ گاہ پر سایہ کرتے تھے۔ ان باتوں کے مفصل بیان کرنے کا یہ موقع نہیں۔ جب یہ چیزیں اس طرح بن چکی تو پہلے خیمے میں تو کاہن ہر وقت داخل ہوتے اور عبادت کا کام انجام دیتے ہیں، مگر دوسرے میں صرف سردار کاہن ہی سال بھر میں ایک بار جاتا ہے، اور بغیر خون کے نہیں جاتا، جسے اپنے واسطے اور امت کی بھول چوک کے واسطے گزرانتا ہے، اس لیے کہ وہ صرف کھانے پینے اور طرح طرح کے غسلوں کی بنا پر جسمانی احکام ہے جو اصلاح کے وقت تک مقرر کیے گئے ہیں، اور اس کے باوجود ایسی نظریں اور قربانیاں گزرانی جاتی تھیں جو عبادت کرنے والے کو دل کے اعتبار سے کامل نہیں کر سکتی۔ تو کاہن جو تھا وہ پرانے عہد نامے کے مطابق وہ تھا جو پوری امت کے لیے، پہلے خود کے لیے پھر امت کے لیے قربانیاں گزرانتا تھا جسمانی طور پر۔ اسی طرح ایک لیوی اس جگہ آیا، وہ بھی اسے دیکھ کے کترا کر چلا گیا۔ لیوی کے حق میں کلام کی گواہی ہے۔ لیوی کون ہے؟ اور لبان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیہا اور چھوٹی کا نام راکھیل تھا۔ یہ سب یعقوب کی اولاد ہیں جسے لبان نے اپنی بیٹی لیہا کو دیا تھا۔ اس وقت یعقوب کے 12 بیٹے تھے۔ لیہا کے بیٹے یہ تھے: روبین یعقوب کا پلوٹھا، اور شمعون اور لاوی جس پر ہم اب بھی بات کر رہے ہیں، اور یہودا اور اشکر اور زبلون، اور راکھیل کے بیٹے یوسف اور بنیامین تھے۔ یوسف جو مسیح یشوع کا، جو پرانا عہد نامے کے مطابق مسیح یشوع کی ہی تمثیل ہے، اور بنیامین سچائی کی روح کی تمثیل ہے نئے عہد نامے کے مطابق۔ اور جب خداوند نے دیکھا کہ لیہا سے نفرت کی گئی تو اس نے اس کا رحم کھولا، مگر راکھیل بانج رہی،
اور लिहा हामला हुई और उसके बेटा हुआ और उसने उसका नाम रूबीन रखा क्योंकि उसने कहा कि खुदावंद ने मेरा दुख देख लिया, सो मेरा शौहर अब मुझे प्यार करेगा। वो फिर हामिला हुई और उसके बेटा हुआ। तब उसने कहा कि खुदावंद ने सुना कि मुझसे नफरत की गई, इसलिए उसने मुझे ये भी बख्शा। सो उसने उसका नाम शिमोन रखा और वो फिर हामिला हुई और उसके बेटा हुआ। तब उसने कहा कि अब इस बार मेरे शौहर को मुझसे लगान होगी, क्योंकि उससे मेरे 3 बेटे हुए, इसलिए उसका नाम लावी रखा गया। और खुदावंद ने मूसा से कहा, लावी के कबीले को नजदीक लाकर हारून काहिन के आगे हाजिर कर, हारून काहिन के आगे हाजिर कर। और लावी वो हैं जो काहिन के आगे रहते थे, ताकि वो उसकी खिदमत करे काहिन की, और जो कुछ उसकी तरफ से और जमात की तरफ से उनको सौंपा जाए सबकी खैमा इज्तिमा के आगे निगाहबानी करें, ताकि मस्कन की खिदमत बजा लाएं। तो लेवी वो थे जो काहिन के आगे रहते थे और सब चीजों का प्रबंध करते थे और खिदमत करते थे सब चीजों की, और वो खैमा इज्तिमा के सब सामान की और बनी इसराइल की सारी अमानत की हिफाजत करें, ताकि मस्कन की खिदमत बजा लाएं। और तू लावियों को हारून और उसके बेटों के हाथ में सुपुर्द कर, बनी इज़राइल की तरफ से वो बिल्कुल उसे दे दिए गए हैं। और हारून और उसके बेटों को मुकर्रर कर और वो अपनी कहानत को महफूज रखें। लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला और देखकर तरस खाया और उसके पास आया और उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन 2 दिनार निकालकर बटियारे को दिए और कहा, इसकी खबरगिरी करना और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूंगा। इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में घिर गया था, तेरी दानिश में कौन पड़ोसी ठहरा? उसने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया। यीशु ने उसे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। अब सामरी कौन है जिसे तरस आया? नूह के बेटों सिम, हाम और याफत की औलाद ये हैं। तूफान के बाद उनके यहां बेटे पैदा हुए और बनी हाम ये हैं, कूश और मिस्र और फूत और कनान। और कनान से साइदा जो उसका पहलौठा था, और हित और यबूसी और अमोरी और जिर जसी और हावी और अर्की और सीनी और अरवादी और सामरी। किससे पैदा हुए? सामरी किससे पैदा हुए? और कनान से साइदा जो उसका पहलौठा था, और हित और यबूसी और अमोरी और जिरजासी और हावी और अर्की और सीनी और अरवादी और सामरी और हमाती पैदा हुए। और उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी जो काहिन है, जो लावी हैं, यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। और उस शख्स को जो डाकुओं से घिरा था और उसके कपड़े फाड़े और उसको मारा, तो किसे दया आई? सामरी जिनसे यहूदी यानी काहिन और लावी कोई वास्ता नहीं रखते थे, कोई बर्ताव नहीं रखते थे। यहूदियों ने जवाब में उससे कहा, क्या हम खूब नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में बदरू है? तो सामरी ने उस डाकुओं के घिरे इंसान को और जिस
डाकुओं ने उसके कपड़े फाड़े, सामरी ने उसकी मदद की और उसकी मरहम पट्टी करवाई और उसकी देखभाल की। तो आपका पड़ोसी वो है जो मुसीबत के वक्त आपको उठाता है और आपकी मदद करता है हर तरीके से, हर तरह से, तो वो आपका पड़ोसी है कलाम हक के मुताबिक। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो।